congratulations. बैठ जाओ ना आप लोग, बैठ जाओ. Himanshu, please बैठ जाओ. And let me tell you, I have a special Apriya memory also. लगान लास्ट सीन हम पूरा ये हॉल भरा हुआ था और खुद गया था जैसे आपने जो छक्का मारा था ना वो बाहर बॉल गेंद करके so that is my Priya memory and I'm sure you have heard about this too. So there was a standing ovation given to Lagan right here. Thank you so much. A pleasure meeting you both. So Ajay, since it all started here and there's also a very special Aamir Khan connection associated to how his journey began. So could you please tell us about that? First of all, welcome everybody here and thanks for coming and taking the time out. And also to Aamir, thanks Aamir for being here. Basically, कल भी मैंने बोला था और एक और थोड़ी सी get together थी कि जिसके अंदर cinemas without movies are empty spaces. So 1988 में मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया था तो मेरे फादर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सिनेमा बनाने के लिए और उसी वक्त क़यामत से क़यामत देनी थी 1988, you're right. तो उस वक्त मैं ट्रकिंग बिजनेस में था लेकिन मुझे सिनेमा का बहुत शौक था तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी तो मैंने कहा इसको करते हैं आई एम नॉट जोकिंग जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग हियर कि वो काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवी थी और उसने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया and suddenly a lot of people were not coming to cinemas. So there was a lot of problems with some people. 500, 600, 700 screens used to shut down at that time because government had put a very high entertainment tax. If you remember, 60% entertainment tax था. तो उस वक्त फिर ये धीरे-धीरे पता लगा कि लोग अभी भी आएंगे और अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे जिसमें सीट्स अच्छी हो, साउंड अच्छा हो, प्रोजेक्शन सिस्टम हो, साफ सुथरा हो, तो लोग दोबारा आ जाएंगे. So Aamir, unknowingly, you played a very big role in making sure. So 1990 is the one where 1990 we opened the cinema as a single screen cinema, and God was kind. The cinema did well, and that then encouraged me to do multiplexes because इतनी movies आती थी और मैं बहुत I used to feel very deprived of good content because single screen में एक पिक्चर चलेगी अगर बहुत चलती है तो it's a case of mixed emotions. It's doing very well, but suddenly 3-4 और पिक्चर अच्छी आती है जो तुम accommodate नहीं कर सकते because हमारा single screen. तो फिर मैंने कहा अगर दुनिया भर में multiplexes आ रहे हैं तो इंडिया में भी आने चाहिए because 5-6 पिक्चर तो वैसे ही if you add all the Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, Punjabi, Hindi, English 6-7 फिल्म्स तो आती हैं हफ्ते में तो इसलिए उसी एरिया में 30,000 स्क्वायर फुट में अगर आप 6-7 स्क्रीन्स बना देंगे तो शायद लोग आएंगे तो फिर that's how it all happened and again I want to come back to then he doesn't remember then next time I met him was in 2000 for Lagan मतलब उसी कोई मार्केटिंग 98 की बात है या नहीं 2000 की बात है 2000 की बात है उस वक्त लगान की मार्केटिंग की मीटिंग तो उदय कौशिश ने मेरे को बुलाया फिर first time. So we had to talk about programming of the movie and marketing. And then we opened one cinema with your film, Dil Chahta Hai. Of course, which was right after the audience also सब आए थे. That was Narayana. That time I didn't know Aamir that well. And then finally I met him again in Priya during Rang De Basanti. That's when. That's when properly we met. That's the properly. I think so. And that's when I said कि मैंने भी तो पिक्चर बना लिया. आमिर आप बताएं आपका क्या एसोसिएशन है आज जैसे 25 years. सबसे पहले तो very good evening to everyone और मैं अजय को congratulate करना चाहूँगा बहुत बहुत बधाई हो अजय आपको और आपकी पूरी टीम को PVR सिनेमाज ने 25 साल पूरे किए और हम उसी सिनेमा में बैठे जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी so it's a wonderful journey that you had आपका बहुत ही ख़ास contribution रहा है सिनेमा की तरफ और जिस पैशन से आपने ये बिजनेस किया है your work speaks for itself so it's really wonderful and Ajay has been a close friend हम लोग वैसे एक दो दफा जैसे तू बता रहा है मिले थे but the first time I remember हम लोग का एक proper connection हुआ था that was during Rang De Basanti and then we met again and got closer और हमारी दोस्ती हुई फिर हमने 2 फिल्में साथ में बनाई तारे ज़मीन पर और जाने तो या जाने ना and that was again a very wonderful experience so it's always been wonderful working with Ajay wow Ajay how do you feel वैसे 25 years quarter century silver jubilee to use इनका लगान का वो और movies का 25 silver jubilee and quarter century
Blink of an eye, because समझ भी नहीं कैसे हुआ. Honest to God, God has been kind. I've been blessed with, excellent people at PVR. I've done a great job. I've been blessed with investors who backed PVR. And I said 2 engines which have always made our business grow, and that's why I love the Indian market. I don't know whether you know, post-pandemic, India's only market which has bounced 90% from pre-pandemic levels. Wow. All the markets where Hollywood is dominating. Hollywood, I don't know, Amir, if you know, only 60 movies got released this year, as opposed to 130 that got released pre-pandemic. Because every studio has come out with their own streaming platform as well. They're still recovering. So, जो market में सिर्फ Hollywood की dominance है, those markets are not doing that well, unfortunately. But India has got such quantity of content, such diversity of content, and I love the Indian market for that reason. And the film fraternity, their contribution to coming out with movies over and over again, churning them out. So that's the engine on one side. The other engine is the appetite for people to go out and watch movies on the big screen. It's still the #1 form of entertainment. So this entire journey would have not been possible if these 2 engines were not propelling as fast as they've always done. And so this is what has been, and I've just tried to create an infrastructure connecting prolific filmmakers like Amir and the consumers who still want to watch movies. So this 25 years have been all thanks to both these extremely important ingredients to make this whole infrastructure, this conduit connecting the two, survive and thrive. Did you describe me as prolific? बहुत ही inaccurate description है. 4 साल में मेरी एक फिल्म आती है. Prolific वो होता है जो बार मतलब. It's like a festival because we all away. I didn't want to interrupt you. But before we go for a special photo of Amir, you come from a family of filmmakers. जी. Cinema, the single screen का एक अलग ही मजा है, romance है. What does it? How do you express this? Actually मेरे लिए size of the hall is not so important. जी. यकीनन एक बड़ा हॉल होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे अभी ये स्क्रीन इतना बड़ा स्क्रीन है. पर मेरे लिए what is important is कि जब आप सिनेमा घर में आते हैं तो आप उस अंधेरे में बैठ के देखते हैं फिल्म, उसमें खो जाते हैं. जी. और जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर और साउंड है वो आपको धीरे धीरे अंदर खींच लेती है. और जो आप ग्रुप एक लोगों के साथ बैठ के हंसते हैं, रोते हैं, मज़ा लेते हैं फिल्म का, जो एक कलेक्टिव जॉय जो होता है ऑडियंस का, वो आप घर पे बैठ के अकेले महसूस नहीं कर पाएंगे. जब लोग पूरा थिएटर हंसता है या पूरा थिएटर ताली मारता है या खुश होता है, तो उसकी जो फीलिंग, जो एक लहर दौड़ती है ऑडियंस में, वो सिर्फ सिनेमा घर में ही पॉसिबल है. द लार्ज स्क्रीन एक्सपीरियंस. सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज लव्ड एज एन ऑडियंस एक्चुअली. इसलिए मैं फिल्में ज़्यादातर स्क्रीन पे ही देखता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे. Absolutely, वैसे ही करना चाहिए. एंड आपने जैसे अंधेरे की बात की, इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ओकेजन दैट वी ऑल गैदर्ड फॉर? The idea came during the pandemic, and I want to give credit to Gautam Datta, our CEO, who's not well, and the gentleman who wrote this poetry called, his name is Vineet Panchi. तो वो अंधेरा इतना हो गया था 2 साल में. तो लेकिन लकीली जो एक एडेज है, दिस लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सो कोई भी टनल को एक्सप्लेन, जब टनल के बारे में बात करता है तो लाइट की जरूर बात करता है. तो मुझे लगा कि हमारा भी एक टनल है, अंधेरा है, लेकिन इसके एंड में लाइट जरूर होगी. तो उस आइडिया को लेकर पंछी ने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी. जैसे वो पोइट्री मैंने सुनी, मुझे बहुत पसंद आई. और हमारे 25 साल भी होने वाले थे. और फिर मैंने आमिर से बात करी. मैंने कहा, द ओनली पर्सन हू कैन ब्रिंग लाइफ to this idea would be Amir. So I requested him कि यार ये मुझे एक 4 लाइनें बहुत पसंद है. Amir heard the lines and he also liked them, which was a big one. Yeah, I really like the lines. मतलब ये कि हम लोग लाल सिंह चड्ढा बना रहे थे, उसके साथ साथ हम लोग ये फिल्म भी बना रहे थे. तो I really liked it and he's saying I'm also contributed to the delay in the release. हाँ, अजय की वजह से थोड़ी बहुत डिले हुई. बट एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट विनी जी ने बहुत अच्छा लिखा है. वो सुन के भी मुझे अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू यार 11 अगस्त हो जाने थे, फिर मैं आराम से करते हैं. बट वो पोइट्री इतनी अच्छी थी और बनी हुई थी, तो आई फेल्ट कि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. एंड इट हैपेंड. या वाओ. सो आई वुड रिक्वेस्ट द टू ऑफ यू टू स्टैंड एंड लेट्स commemorate the moment today. And
और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट है, बिकॉज इट्स ऑल्सो द फर्स्ट सिनेमा चेन टू लॉन्च इट्स ओन NFTs. सो पहले आप अपनी तस्वीरें खींच लीजिए, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे द फर्स्ट एवर PVR NFTs टू सेलिब्रेट इट्स सिल्वर जुबिली. And this special edition of the NFTs comprise of a silver coin, gold coin, and iconic ticket. So go grab it. Here it is. The special edition of the PVR NFTs. Sir, this side. Yeah. Sir, center. Sir, this side. Sir. Thank you. और जिस मौके का हम सब इंतजार कर रहे हैं, इस अंधेरे में बहुत रोशनी है, वो अब हम देखेंगे. So I would request you both to join our media friends and watch this very special film, and then I'll bring them back here and we can discuss the movie. मेरा जवाब दे जाओ. तो कैमरा थोड़ा नीचे कर ले ताकि सबको कैमरा फिर हम लोग ऊपर करेंगे तो पीछे वालों हम शुरू करें अपनी वार्तालाप. हाँ, पहला सवाल आपसे. आप इतने चूजी हैं स्क्रिप्ट को देखकर, आप बहुत टाइम लगाते हैं स्क्रिप्ट को आगे लेने. जब ये आपके पास आते हैं एकदम हाँ कैसे कहते हैं? नहीं, जब एक्चुअली अजय का फोन आया कि मैं 25 साल हो गए, मुझे कुछ बनाना है, तो ऐसा हाँ ऑफ कोर्स वील मेक समथिंग. ही सेड एक पोएम है जो विनीत जी ने लिखी है, to see how you like this. So when he sent it to me on WhatsApp and I really liked it. So I called him back and said, यार ये तो बड़ी अच्छी poem है, we can work on this. So I just liked what he was saying. You know, जिस तरह से he was saying कि ये जो अंधेरा है, जब हम अंधेरे में आते हैं, so the way he described it कि इस अंधेरे में क्या लाइन से मैं भूल गया. रोशनी तो एंड में बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कि इस अंधेरे में उम्मीद है, जिंदगी लेट रहा हूँ, दोस्ती है मेरी इससे, कभी कभी अकेले आता हूँ, कभी किसी और को साथ ले आता हूँ, अलग अलग एहसास जो है, जज्बात बाहर आते हैं. सो इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स ऑल दीज लाइन्स एक्चुअली डोंट अप्लाई टू अंधेरा. जो नॉर्मली जो हम लोग अंधेरे के बारे में बोलते हैं, ये सारी लाइन्स नहीं आती उनके साथ. अंधेरे में आपको नॉर्मली डर लगता है, अंधेरे में आप अकेले जाना नहीं चाहते, तो ये सारी चीजें उल्टी हम बोल रहे हैं. और फिर एंड में हम डिस्कवर करके ये जिस अंधेरे की बात कर रहा है, वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है. एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास. और इस अंधेरे में बहुत रोशनी. सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड हियर. Bated breath. I wanted him to like the script. So I'm going to ask you the question. I know you both are good friends, but how come you said I only do it with him? Friendship ko we just keep it on the side. Because friendship played an important role, very important role, because obviously first right of refusal is with him. True. And secondly, I am wearing the other hat of also being a fan. I love the work that Amir has done, and so I just thought that
you know, in such a milestone or whatever that we've achieved with the grace of God, I wanted somebody who I have the most amount of respect for as a creative person, as an actor. Absolutely. So, yeah, so it was a dream come true for all of us. Absolutely. And also इस अंधेरे में सुकून भी बहुत मिलता है. हाँ, सिनेमा हॉल के. बिल्कुल सुकून भी बहुत. और आपने देखा होगा एक्चुअली सिंगल शॉट है पूरा. हाँ, वो मैं पूछना चाहती थी कॉन्सेप्ट और आपने कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? That's when I took a back seat. That's what, because he is the one, because he would have given us जब इस एड फिल्म को अनीश ने डायरेक्ट किया है. जी. But actually before Anish came on, we had discussed the concept and we kind of briefed him. जैसे एड फिल्म में नॉर्मली हम डायरेक्टर को ब्रीफ देते हैं कि हमारी क्रिएटिव ये है, आप ऐसे शूट करें. तो we had given him a brief कि सिनेमा हॉल है, अंधेरा है, लेकिन सिनेमा हॉल का मतलब पहले जब आप उसको देखें तो सिनेमा हॉल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अंधेरा दिखना चाहिए. और वो एक लंबा शॉट है, जब पहले तो वो दूर है, फिर कैमरा धीरे धीरे नजदीक आता है एंड आपको नजर नहीं आता कि वो एक्चुअली कहाँ बैठा है, सिर्फ आसपास अंधेरा नजर आता है और वो एक ही शॉट चलता रहता है. सो इट वाज फन फॉर मी एज एन एक्टर आल्सो बिकॉज इट वाज आई हैड टू प्ले दीज लाइंस आउट एंड यू नो फील द लाइंस एंड जस्ट इंटरैक्ट विद द डार्कनेस. तो अच्छा था मेरे लिए भी. इट वाज नाइस, चैलेंजिंग भी मिला. अजय, आप सबकी पिक्चरें दिखाते हैं अपने सिनेमा हॉल में. अगर ये अपनी पिक्चर भी आप यू प्लानिंग टू लाइक शो अराउंड? Yeah, I mean this year, I think before every show, we're planning to show this film obviously on social media and TV spots. We've never done any brand film for PVR for the longest time, so I thought this was a good time to do that. So we'll be showing this everywhere. So 25 years हो गए, अब आगे 25 years का है. आगे भी साथ चाहिए, मूवी मेकर्स का भी और फिल्म गोअर्स का भी. तो अगर उनका साथ मिलता रहेगा तो अगले 25 साल भी बीत जाएंगे. And I'm sure Amir also must be relieved now. 4 साल के बाद आ रही है पिक्चर. Of course. हाँ, हम लोग काफी नर्वस हैं एक्चुअली. रिलीज ज़्यादा मैं काफी नर्वस हूँ. मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए आई हैव नॉट स्लेप्ट. हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा. हाँ, मुझे नींद नहीं आती. माई ब्रेन इज इन ओवरड्राइव. तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटान खेलता हूँ. हाँ, अभी 11 के बाद ही नींद आएगी. So, I mean, what is the plan now? As you said, 25 साल तो आपको मिलता रहेगा. आप दोनों से आपने तो बता दिया, आपका क्या प्लान है 11 के बाद? सोएंगे आप? हाँ, मैं सो जाऊंगा अभी 11 के बाद. आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों घोड़े बेच के सो जाएंगे. और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई. We'll wake up and discover. 4 साल के बाद एक फेस्टिवल हो रहा है, क्यों नहीं पसंद आई? I mean, literally, we've all waited that long. But thank you so very much. And जाते जाते I'm going to ask you, what do movies mean to the two of you? When I say the word movies, what comes to mind? You want to go first? No, I think you're more qualified to answer this. Actually, movies for me has always meant stories, कहानियाँ. और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है और कहानी सुनने का बहुत शौक है अम्मी से, नानी जान से. और घर पे चूँकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे. कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्क्रीन प्ले होता था, कभी विथ डायलॉग्स होता था. तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था. और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज. और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है. उसी उम्र से 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया. एंड आई जस्ट सो आई लव स्टोरीज. मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसमें. रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ. तो आई एम अ ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, of the story, of the book or the film. So for me, movies is essentially stories, कहानियाँ और stories about humanity which inspire us, which move us, जो हमारा दिल छू लेती हैं. ये कहानी है, जो कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं एक्चुअली, यू नो, इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती है, which is a very important thing. So true. And you movies, I know there's one of Amir's film that is very, very close to your heart. You want to tell us all about that? Let the cat out of the bag. Firstly, that's a hard act to follow the way he described movies. But मैं तारे ज़मीन पर
extremely biased I am because I was involved in that movie. But उससे पहले मुझे रंग दे बसंती ने बहुत impact किया था, and that really encouraged me to you know, digress from what I normally do, which is make cinemas. And there was still a long way to go and make more cinemas, but I completely diverted my attention when I requested कि यार इकट्ठे करते हैं. So I think Rang De Basanti had a huge impact. But there's so many movies that impact you. But now I think we should talk about the movie that I saw last night in the cinema. Please tell us about it. We're all going to watch it on the 11th. I think it is absolutely amazing. All that Aamir said about storytelling, about moving you, emotions, everything is there. And you know, after 4 years, movie is coming of Aamir, and I think I would urge everybody to go and watch that movie. It is something very, very special. And I want to wish Aamir, on behalf of PVR, all the very, very best. Friday को नहीं, आप लोग देख के बताइएगा भाई, आप लोग. I'm curious to know Friday को करते क्या हो जिस दिन पिक्चर का रिलीज होते हैं. कोई सुपरस्टिशन है, लाइक कोई अपना फोन नहीं देखेगा. मैं अभी नहीं, मैं थिएटर में घूमता हूँ और ऑडियंस के साथ ऑडियंस का रिएक्शन देखता हूँ. ऑडियंस को पता नहीं होता मैं थिएटर में मैं देख लेना शायद आपके साथ बैठ के पिक्चर देख रहे पहले हफ्ते में मैं अलग अलग शहरों में भी जाता हूँ, अलग अलग थिएटरों में जाता हूँ और चुपचाप पीछे से मैं रिएक्शन देखता हूँ. कभी मैं प्रोजेक्शन की खिड़की से देखता हूँ, कभी दरवाजे से. हाँ, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द थिएटर. हाइडिंग स्पॉट कहाँ अच्छा है. वाओ, द कैट इज आउट ऑफ द बैग. सब उससे क्या होता है कि नहीं आप लोग वहीं देखिए सामने. नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का. अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पॉन्स करें. मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. एब्सोल्युटली, ऑल द वेरी बेस्ट. आपका लेबर ऑफ लव है, हमारे लिए फेस्टिवल है. सो 11 अगस्त पीवीआर आइए और लाल सिंह चड्ढा देखिए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू. हर जगह जाइए, पीवीआर में जाइए और सारे सिनेमास में जाइए. हम अपने फेवरेट थिएटर की बात कर रहे हैं, हम बायस्ड हैं. और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है. बड़ा अच्छा ट्रेलर है और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है. तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए. होपफुली बोथ द फिल्म्स विल डू वेल. थर्सडे बैक टू बैक टिकट्स बुक कर लीजिए बस पीवीआर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thanks. आई थिंक ऑल ऑफ देम वांट अ फोटो ऑफ द टू ऑफ यू. पीछे हो जाती हूँ. सर, क्वेश्चंस? I want to ask you something. Sir, you don't want to ask any question? It's up to you. आप कुछ Please. 2 or 3 media. Please. Sure. 5 to 6. Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. Hi Pari. Hi. एक्चुअली आवाज आ रही है. Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. So first of all, congratulations कि 11 तारीख को मूवी आ रही है बहुत इंतजार के बाद. सर, अभी लास्ट टाइम जब आप कॉफी विद करण में गए थे एंड काफी ज्यादा हमने मतलब मैंने तो बहुत ही मजे में वो देखा था एपिसोड. एंड आप कभी इतने फनी दिखे नहीं जितना आपने उसमें मजे किए. और आपने बोला कि सब मुझे बोर कहते हैं, मैं हूँ नहीं. तो सर मैं जानना चाहूंगी, उसी में आपने बताया था कि इस पिक्चर के राइट्स लेने के लिए आपको 4 से 6 साल तक 8 साल लग गए आपको जी. एंड उसके बाद ये पूरी मूवी 14 साल में बनी. तो इतना वेट करना एक मूवी के लिए, आप मतलब क्या कुछ आपके मन में चलता है? और जब ये आप मतलब राइट्स के लिए गए तो कितनी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या कितना कुछ आपको? एक्चुअली बहुत मायूसी का सामना करने पड़ता था जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे. लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको राइट्स मिल गए और ये काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है. मैं कहूँगा शायद जो मेरे करियर में जितनी फिल्में हैं जिनका मैं एक हिस्सा बना हूँ, शायद उनमें से ये टफेस्ट फिल्म है, मैं कहूँगा. हाँ सर, इसका कोई बेस्ट मोमेंट आपका जो इस पूरी मूवी का है? क्योंकि अलग हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा मोमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, लेकिन मैं कुछ गिव अवे नहीं करूँगा. जी बिल्कुल सर, वो तो हम 11 को देखेंगे. हाँ, तो वो सीन वो है जब लाल सिंह जो है वो रूपा को बहुत समय बाद मिलता है. इनफैक्ट पगड़ी दोबारा जब बांधता है वो, तो उसके बाद पहली दफा वो रूपा को मिल रहा है. तो वो जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन है. आमिर सर सिंगल स्क्रीन पर हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम पे चलती रहती लगातार.
लेकिन अब वो पीवीआर बनने के बाद या वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता, क्या कारण है कि फिल्म अब लगातार आ रही है या पहले कम बनती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा। एक जमाना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद मुंबई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान सीपीसी आए, यू नो, इट इज टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहां घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज करते हैं तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल्ली यूपी बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही, फिर अलग जगह रिलीज होती थी। तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी। हाँ, तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती है, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, वो जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले जमाने में 10 हफ्तों में आप देख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो है वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं, राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ फर्क नहीं है। Sir, this is Seema Dhawan from Retro Lifestyle Magazine. Hi, Seema. Sir, now you have just talked about the response of the audience, कि आप audience का response देखने जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि any such response which actually melted your heart and touched deep? Because that is unfiltered. सामने तो लोग different होते हैं। No, I have to tell you कि ये कई दफा हुआ है मेरे साथ। जब मैं थिएटर में बैठा हूँ, जैसे कि जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना, मतलब मुझे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जो क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसा लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया। और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है। हम लोग को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, दंगल, 3 इडियट्स, तो एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स है उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पहुंच रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। So it's something very special and I hold it very close to my heart. हमेशा this side. जी, जी। हमेशा here, sorry, this side, straight. Sir, hello sir. Straight up बोलना चाहिए आपको। आप straight down बोल रहे थे तो मैं नहीं देखा। सर, अभी आप KBC में गए थे अमृतसर में, और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, और बहुत सारी चीजें जैसे सोशल मीडिया पर चल रही हैं अभी, और वहाँ पे एक और चीज देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो ये है कि जब सारे लोग थे, या कर्नल मेजर सिंह, वहाँ पे मिताली भी थी, तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था, तो ऐसे सर आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा हुआ एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा, बोलो तो आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था। हाँ सर, अमिताभ सर ने भी किया था और मिताली ने भी किया था। मैंने भी किया होगा। नहीं सर, आप खड़े हो। ओह, अच्छा। किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी।
वंदे मातरम से गाना हो रहा था। वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था। क्या वो कैमरा कभी कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद मुझ पे कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट तो मैंने किया था। Hi Amin, I'm Ashu from Zee Media. Hi. And since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chaddha is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing. I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty. And if you would and like I'm to having faith in my audience. And, okay. Yeah. Response to the trollers in Lal Singh Chaddha style, because it's a very positive film, and if you would like to respond to that. वही लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग